Good morning students, this is Jyoti here and today we are going to start a new video and new grammar chapter, and that is verbs. What is it? You must be thinking, what is verb? But you don't know verbs are very important for making a sentence. For completing our sentence, the verb is necessary, and if you don't use verb in your sentence, that means your sentence is incorrect and even incomplete and there is no sense. Okay, so जब sentence में कोई sense ही नहीं बनेगी उस sentence की, तो what's the use of that? No use. So that's why we are gonna learn the verbs, where we use it, how we use it and what's the use of it. First, verbs होती क्या हैं? What is verb? Verb is an action. Verb is an action. Do you know the action? I know, you know. I know that you all know what is an action. Action is a work. Now everyone knows work means काम. जो भी आप लोग करते हैं, that is work. If you are sleeping, so that means sleep is a verb. And the work, क्योंकि काम है. If you are writing something, then write is also a verb, an action. And if you are looking at something, so looking is also an action and a work. So जो भी चीज़ें आप लोग करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, आते हैं, whatever you are doing, those all are verbs. And verbs are actions, क्योंकि हम लोग काम करते हैं. And that shows a state. What? State. So please, I just want to say that state is not what? What do you say it? It's not a राज्य. Okay? ये राज्य नहीं है हमारा कोई स्टेट. हम उस स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाली बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ स्टेट की बात कर रहे हैं. That means your condition. That means your condition. In which condition you are in which situation you are. Okay, so that is a state. And the third one is possession. Third one is possession. What is it? If we talk about the possession, means our authority, हमारे अधिकार. Okay, that is possession. But what's the use of this possession in a verb? Verb में possession का मतलब क्या है? Okay, let's take an example first. If I say, and if I want to say कि मेरे पास marker है, I marker or I have a marker. I have a marker. So I just want to say कि ये marker जो है वो मेरा है. Okay, so I have a marker. मेरे पास marker है, तो मैं possession बता रही हूँ, मेरा अधिकार बता रही हूँ इस marker के ऊपर. So that means we use possession, authority. Okay, now the verbs. What is verb? Verbs in an action word. It shows the state and possession. Shows करता है, state बताता है, condition बताता है and possession बताता है. That is called verbs. अब let's take some examples. Okay, pause करेंगे. If I write here, I speak. Okay, I speak. मैं बोलती हूँ. अब मुझे बताना है I am a girl. Okay, or I can also say like I am ill. I am ill. I am a doctor. मैं अपनी condition बताना चाह रही हूँ. Next, I have a pen. I have a pencil. Anything, whatever we wanna say. Okay. अब यहाँ क्या करना है हमें? एक एक्शन स्पीक, वर्क की बात हो रही है. स्पीक किसकी बात हो रही है? वर्क. तो स्पीक क्या बनेगा? एक एक्शन. या आई एम अ गर्ल, मैं क्या हूँ? गर्ल हूँ, लड़की हूँ, मैं बीमार हूँ. आई एम इल, तो ये एम क्या है? कंडीशन
कि मैं इल हूँ, मैं बीमार हूँ, इल हूँ, मैं गर्ल हूँ, तो ये इल, ये गर्ल क्या शो कर रहा है, मेरी कंडीशन, मेरी सिचुएशन। तो उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आई हैव टू यूज एम। इफ आई से आई अ गर्ल एंड इफ आई से आई इल, दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज देयर इज नो वर्ब, and if there is no verb in a sentence, the verb is incomplete and without sense. So for making this sentence sensible, we need a verb, and that verb is am. So it means the condition is here. Now I have a pen. Pen is a noun, I is a subject, and what is have? I know you may be thinking that have is a helping verb. Yeah, आप लोग यही सोच रहे हैं कि हैव तो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हैज़, हैव, हैड तो हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है, बट नो, दिस आंसर इज नो. इट इज़ शोइंग आवर पोजिशन. दिस हैव इज शोइंग आवर पोजिशन, मतलब ये मेरे पास पेन है, तो मेरे पेन के बारे में बताया जा रहा है, तो दैट इज शोइंग बाय द हैव. सो आई स्पीक, आई एम अ गर्ल, आई हैव अ पेन. इज इट क्लियर? वी विल डू इट. So let's begin it कि how many types of verbs are here. कितने types की verbs होती हैं and how we use it. What are main verb? What is helping verb? We have to do these all for making a sentence and making our sentence even more attractive, more useful and with sensible. So अब हमें क्या use करना है? There are two types. How many types? Two types. दो तरह की होती हैं verbs. सबसे पहले everyone knows it, main verb. What is it? Main verb. Come to the second, that is helping verb. First is main verb and second is helping verb. What's it? Main verb क्या होती है, helping verb क्या होती है, where we use it, how we use it. Okay. Main verbs, सबसे पहले अगर हम बात करें main verbs की, so the verb which is only one. सबसे पहले ये देखेंगे मेन का मतलब क्या होता है, इम्पॉर्टेंट, मुख्य, जो इम्पॉर्टेंट है, जो वर्ब इम्पॉर्टेंट है. लाइक आपके घर में मेन पर्सन, आपके दादाजी, आपके फादर, जो भी होते हैं वो मेन है. ओके, तो ऐसे ही मेन वर्ब, मतलब हमारा जो सेंटेंस है, द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट इफ वी डोंट हैव मेन वर्ब. मेन वर्ब नहीं है उस सेंटेंस में, द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. सो इन फॉर मेकिंग आवर सेंटेंस वी नीड अ मेन वर्ब. मेन वर्ब वो होगी विच इज वन इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में वन इन अ वन सेंटेंस, सॉरी सेंटेंस, एक सेंटेंस में हमारी एक वर्ब है, सो दैट इज मेन वर्ब. हाउ, क्या मतलब मैम, क्या ऐसा बोलने का? एक सेंटेंस में तो दो वर्ब्स भी होती हैं, तीन नहीं होती है बट दो होती हैं. अब कैसे करेंगे इसको? लाइक मैं बोलूँ आई एम, अभी हमने एक एग्जाम्पल किया था, आई एम अ गर्ल. इफ बॉयज आर वॉचिंग दिस वीडियो, just correct it. I'm not talking about you. I'm not saying, and you can also change it, I'm a boy. Okay, don't say कि मैम ने सिर्फ girl लिखा है, so you can say I am a boy. I am a girl. मैं एक लड़की हूँ. So I is a subject, knows it. A is an article, everyone knows, and girl is a noun. What is it? अब ये क्या है, यही तो क्लियर करना है हमें. ये वर्ब क्या है, हेल्पिंग है या मेन है? अभी हमने किया है कि मेन वर्ब वो जो एक सेंटेंस में एक ही होंगी. अगर एक सेंटेंस में एक ही वर्ब है, सो दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब. सो दिस इज अ मेन वर्ब. यू हैव टू बी मोर अटेंटिव इन इट कि अगर एक सेंटेंस में एक वर्ब है, सो दैट इज अ मेन वर्ब. ओके, बट अब हेल्पिंग वर्ब देखो, इसी के साथ एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं हम हेल्पिंग वर्ब का. अब हेल्पिंग वर्ब्स हम लोगों ने पढ़ा है, अभी तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं, इज एम आर, वॉज वर, हैज़ हैव, हैड, ये सब तो क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं. आज मैम ने इन्हें मेन वर्ब में कन्वर्ट कर दिया. ऐसा क्यों कर दिया मैम ने? मैम गलत पढ़ा दिया हमें, ऐसा सोच रहे होगे आप लोग. बट अभी हम हेल्पिंग वर्ब्स करेंगे, सो दीज विल बी क्लियर टू अस.
अब हेल्पिंग वर्ब्स की बात करेंगे। यू आर राइट, इज एम आर, वॉज वर, हैज एम, हैड, हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारी। अब कैसे? अगर एक सेंटेंस में 2 वर्ब्स हैं, अगर एक सेंटेंस में 2 वर्ब्स हैं, 2 वर्ब्स दी हुई है, वर्ब्स समझते हैं ना, काम जिसको हम चेंज करते हैं, लाइक नाउन्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, दोज आर नॉट वर्ब्स। ओके, जैसे मैं ग्लास की बात करूँ तो ग्लास इज नॉट अ वर्ब, दैट इज अ नाउन। पेन इज नॉट अ वर्ब, वी कैन नॉट से पेंड, पेनिंग, okay, we cannot say these kind of verbs. And this is a whiteboard, we cannot say writing board या boarding, no. फिर क्या कर रहे हैं हम, इनका 2 verbs की बात करेंगे हम। अगर मैं यहाँ लिखूँ I am studying, I am studying in 7th standard. Just an example, if I have written here I am studying in 7th standard, मैं 7th standard में पढ़ रही हूँ। See, I क्या है? I is a subject, am is a verb, studying हमने verb में चेंज किया, ing लगाया, और ing तो हम अपनी verb में लगाते हैं, studying कर दिया। इन हमारी प्रपोजिशन है, 7th standard हमारी क्लास की बात हो गई है, यहाँ पर नाउन की बात हो गई है। अब यहाँ देखेंगे, एक वर्ब ये और एक वर्ब ये, 1 + 1, मतलब कि यहाँ कितनी वर्ब्स हैं? 2 वर्ब्स। 1 + 1 = 2, तो 2 वर्ब्स हैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स। अभी बताया एक हेल्पिंग वर्ब वो होगी जिसमें 2 वर्ब्स होंगी। अब ये जो एम है ना, दैट इज अ हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज अ मेन वर्ब। बोल रही हूँ मैं बार बार, अटेंटिव रहेंगे आप, तभी समझ आएगा कि अगर यहाँ एम दिया है, ओके, यहाँ एम दिया है, यहाँ भी एम दिया है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक जगह मैम ने तो मेन वर्ब लिख दिया, दूसरी जगह मैम ने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, ऐसा क्यों कर दिया मैम ने? क्योंकि इसलिए किया है कि इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब की बात हो रही है, एक ही वर्ब की बात हो रही है, तो वो मेन वर्ब है। लेकिन अगर इसके साथ हमने एक और वर्ब का यूज़ कर दिया, तो वो जो इज एम आर है, क्योंकि हम लोगों ने अभी टेंस में भी पढ़ा है, इज एम आर, वॉज वर, हैज़ हैव, हैड, ये सब हमारी क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो करेक्ट है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब ये तब है जब इज एम आर, वॉज वर, हैज़ हैव, हैड के साथ एक और वर्ब दी हुई है, जैसे स्टडी दिया है, ठीक है? तो ये स्टडी क्या है? स्टडी एक वर्ब है और उसमें हमने ing लगाया है, तो वो स्टडी कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। और ये एम कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब जैसे मैं यहाँ लिखूं कि दे स्टडी, ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल, दे स्टडी, और मैंने लिखा दे आर मेकिंग मी फूल, दे स्टडी, वो पढ़ते हैं, और मैंने लिखा दे आर मेकिंग मी फूल, मतलब वो मुझे मूर्ख बना रहे हैं, वो मुझे पागल बना रहे हैं। क्या डिफरेंस है? देखो, दे यहाँ भी आया, दे यहाँ भी आया, ये तो क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, एवरीवन नोज इट। स्टडी है मतलब यहाँ फुल स्टॉप लग गया, लेकिन यहाँ देयर इज नो ऑब्जेक्ट एंड नो एनी अदर वर्ब, कोई और वर्ब भी नहीं है यहाँ, कोई और ऑब्जेक्ट भी नहीं है, नथिंग इज हियर, सो दिस वर्ब इज कॉल्ड मेन वर्ब। जैसे यहाँ एम मेन वर्ब थी, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब थी, इस पूरे सेंटेंस में एक ही वर्ब है, दैट इज स्टडी, तो ये स्टडी क्या है? मेन वर्ब। अब नेक्स्ट में देखते हैं, दे सब्जेक्ट, आर क्या है और मेकिंग क्या है। अब देखो, आर भी वर्ब है, मेकिंग भी वर्ब है। आप लोगों को वर्ब समझ आएगी जब आप 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, किस किस में ing लगा सकते हैं, कैसे बना सकते हैं हम सेंटेंसेस, डिफरेंस, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द वर्ब्स एंड द नाउन्स फर्स्ट। ओके, तो यहाँ आर वर्ब आ गई, मेकिंग भी वर्ब आ गई, तो 1 + 1 इट इज इक्वल टू 2 वर्ब्स। इट मीन्स यहाँ कितनी वर्ब्स हैं? सॉरी, कितनी वर्ब्स हैं यहाँ? 2।
तो एक वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब होगी और मेन वर्ब उसके बाद वाली होगी। याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आएगी अगर एक सेंटेंस में है तो। यू कैन नॉट से दे मेकिंग आर मी अ फूल, दैट इज इनकरेक्ट। ओके, हमने अभी टेंस में भी पढ़ा है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड आता है, फिर प्लस में जो भी आपको वर्ब लगानी है मेन वर्ब V1 प्लस ING, V2, V3 वट एवर यू आर यूजिंग इट, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं। इसलिए हमने आर फिर मेक की ING लगाया, मेकिंग मी ऑब्जेक्ट अ फूल। ओके, सो हमें ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम वर्ब सीख रहे हैं। तो यहाँ आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज इट? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि एक सेंटेंस में दो वर्ब्स हैं, तो एक सेंटेंस में जब दो वर्ब्स हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू because we are going ahead now. We will do the how many parts of the main verbs, how many parts of the helping verbs. But first of all, you should know what is main verb and what is helping verb. Main verb, there is a one verb in a sentence, that's a main verb. Okay, and if helping verbs, if there are two sentences in a verb, one verb is a helping verb before the main verb. Okay, and after the helping verb there will be a main verb given, as we have done in this examples, this one example and this one example. Okay, just try to make some sentences, try to make some examples of it so that it will be clear to you. Okay, so let's begin it and come to the parts of the main verbs and the helping verbs, which are very important. Now let's come to the main verb. How many types of main verbs? जैसे हमने पढ़ा verbs की two types, main verb and helping verb. Let's do it main verbs. How many types of main verbs? There are two types. Two types of main verbs. The first is finite verb. What is it? Finite verb. And the second is non-finite verb. First is finite verb and second is non-finite verb. And what is finite verb? Yeah, but before that let's do it. Finite verbs के भी parts होते हैं and there are two parts, two types of finite verbs: transitive verbs and intransitive verbs. Transitive verbs and intransitive verbs. Okay, देखेंगे कि verbs हमने पढ़ लिए, main verbs, helping verbs, these are clear to us. Main verbs के two parts, finite verbs and non-finite verbs, and finite verb also has two parts, transitive verbs and intransitive verbs. But before doing that, we have to do something very important. Okay, just forget about it, just focus on it. What I'm going to do here, we are going to do object. If you don't know the object, you know nothing. Okay, अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता है, so that means you know nothing, कुछ नहीं पता आपको। क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स which we use for making the sentence and we use it at the end of a sentence. Okay, यही करते हैं, हम लोगों को यही पता है, एंड में आते हैं। बट अब इसके भी पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट करेंगे बिकॉज विच इज़ वेरी नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट। कितने पार्ट्स हैं इसके? टू पार्ट्स। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तो पता है आपको कि एक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एंड में यूज़ होते हैं सेंटेंस के। लाइक अगर मैं बोलूँ आई एम टॉकिंग टू यू या ही इज़ टॉकिंग टू मी, तो जो मी है, यू है, दोज आर ऑब्जेक्ट्स, पता है हमें। लेकिन वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कैसे पता चलेगा? सो सिंपल, जस्ट नो नीड टू डू एनीथिंग, सिर्फ छोटी सी बात को याद रखना है, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम चीज़ों की बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स, चीज़ों की बात करेंगे तो दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी पर्सन की बात करेंगे,
पर्सन की बात करेंगे दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब कैसे ये क्या कर दिया मैम ने कुछ, ठीक है। अब क्या करना है सॉरी, मेक एन एग्जाम्पल। आई एम गोइंग to market with you. I am going to market with you. I is a subject, am is a helping verb. If you are reading a sentence, you should know. सेंटेंस को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ इट। यू शुड नो एवरीथिंग, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, डिग्रीज, एवरीथिंग। आई इज़ अ सब्जेक्ट, एम इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, गोइंग इज़ अ मेन वर्ब, ओके। टू इज़ अ प्रीपोजिशन, मार्केट इज़ एन ऑब्जेक्ट, या नो, एंड यू इज़ एन ऑब्जेक्ट। देखो, क्या हमने कहीं प्लेस की बात करी है? नहीं करी, सो दैट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट। जब हमने प्लेस की बात ही नहीं करी है, हमने तो सिर्फ थिंग्स और पर्सन्स की बात करी है कि थिंग्स और पर्सन्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मार्केट की बात नहीं हुई तो मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। किसके साथ? तुम्हारे साथ। तो यू क्या है? ऑब्जेक्ट है? कैसे पता? क्योंकि हमने बात करी पर्सन, यू किस में आया? पर्सन में। तो दिस इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो आप लोगों को पता होना चाहिए, फाइंड आउट करना आना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जैसे मैं बोलूँ ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। ही इज अ सब्जेक्ट, गेव इज अ मेन वर्ब, we have changed it, and in a sentence there is only a one verb, so that is main verb. Me is an object क्योंकि पर्सन की बात हो रही है, पेन इज अ थिंग ऑब्जेक्ट है क्योंकि चीज़ की बात हो रही है। तो चीज़ों की बात है तो दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर पर्सन्स की बात है तो दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप द objects and the verbs and main verbs and helping verbs are clear to you. In our next video, we are going to do the finite verbs, non-finite verbs, transitive and intransitive verbs, and how to use these all verbs in making the sentence. And okay, I hope these all are clear to you. Thank you for the today.